Very good morning, students. How are you, children? How is your learning process going on? I hope you have started learning your answers. मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन पेपर, बट स्टिल लेसन के बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, तो यू नीड टू लर्न योर लेसन. ध्यान से लेसन्स को पढ़ो. नहीं समझ में आ रहा है, गो थ्रू योर वीडियोस जहाँ पर उसे एक्सप्लेन किया है. बहुत इजी है चैप्टर्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट. अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो कीप लर्निंग. और हम लेसन भी कर रहे हैं. दिस लेसन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट इन योर हाफ ईयरली एग्जाम, सो कीप लर्निंग. Coming to our lesson, in previous class we have read about distribution of minerals. कहाँ कहाँ कौन से mineral मिलते हैं. And now we will start with conservation of minerals. हाँ, एक चीज हमने पढ़ी है through the lesson that they are non-renewable resource. Once you take out from the earth, they won't come there. वापस नहीं आएगा वो mineral वहाँ पर. तो we need to conserve the minerals. Minerals are non-renewable. Once consumed, they cannot be created or renewed. वापस नहीं आएगा. जैसे प्लांट्स आ जाते हैं या वाटर आ जाता है, मिनरल्स नहीं आते हैं. We have to use the mineral resources in such a way that a sizable amount. What is the meaning of sizable amount? एक अच्छा खासा amount, good quantity is left for future generations. We have to use them in a planned way. बहुत सोच समझ के यूज में लेना है. With the rise in world population and a desire to have a higher standard of living, the demand for mineral resources has also increased. है ना, especially iron, steel, aluminium, इनकी demands बढ़ती जा रही है because people prefer to lead good standard of life. Developed countries consume a disproportionate amount of mineral resources. बहुत ज़्यादा. All the countries are not using equal minerals. जो developed countries हैं especially, वहाँ पर बहुत ज़्यादा use है minerals का. When their population is only 16% of world population. है ना, ये mismatch है. Developed countries में percentage of population is low, but the consumption of minerals is high. Developing countries में percentage of population is high, but the consumption of minerals is low. तो ये बहुत disproportionate है. The USA, Western Europe and Japan together use 70% of all the world's aluminium, copper and nickel. This is very harmful for any effort made to conserve minerals. बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है स्पेशली यूएसए, वेस्टर्न यूरोप और जापान में. तो एक मिसबैलेंस बन गया है. सो फार नो सब्सटीट्यूट हैज़ बीन फाउंड फॉर आयरन and it makes up for 95% of all metals consumed. जो आयरन स्पेशली मशीनरी एंड ऑल में जो आयरन यूज हो रहा है, आयरन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल अगेन. अभी तक हम आयरन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढ पाए हैं. इसलिए सबसे ज्यादा जो भी टोटल अमाउंट ऑफ मेटल्स यूज हो रहा है उसका 95% इज आयरन. The two ways to conserve mineral resources used so far are as below. तो कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं. First is recycling. You must have studied in your junior classes also. Metals can be recycled. It means using discarded metals once again. है ना, स्मेल्ट करके पिघलाकर उन्हें वापस से यूज ले सकते हैं. Many metals like iron, gold, copper and aluminium become reusable through recycling. तो more and more metal needs to be recycled ताकि हमें अर्थ क्रस्ट में से निकालने में की ज़रूरत कम पड़े. जितना ज़्यादा हम उसे रिसाइकिल करेंगे तो अर्थ में से हम कम मिनरल निकालेंगे. Avoid wastage. Minerals can be conserved by using efficient methods of extraction and processing. निकालने में ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन व्हेन वी आर टेकिंग आउट देम फ्रॉम अर्थ बहुत सारा वेस्ट हो जाता है. आगे जब उसकी रिफाइन करते हैं हम या प्रोसेसिंग होती है तब मिनरल वेस्ट होता है. तो वी नीड टू मिनिमाइज दैट वेस्टेज. एंड बाय अवॉइडिंग वेस्टेज,
सेविंग कैन बी डन एट कंजम्पशन लेवल ऑल्सो, जितना जरूरत है उतना ही कंज्यूम करो ना, जरूरत से ज्यादा कंज्यूम मत करो, तो है ना, तो वो भी तो एक तरह से मिनरल को कंजर्व करने वाली बात है. सब्सटीट्यूट, हाँ, न्यू सब्सटीट्यूट्स वी नीड टू फाइंड आउट. In recent years, biodegradable plastic and other substitutes have been used to conserve mineral resources. They need to be encouraged. देखो, आप कहोगे प्लास्टिक, लेकिन कौन सा प्लास्टिक है बच्चों? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. ये इसका यूज हमें बढ़ाना है ताकि मेटल्स और मिनरल्स पर डिपेंडेंस कम हो. तो दीज आर द 3 ways बाय विच, है ना, ऊपर देखो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर. यू नीड टू राइट 3 here. It's not 2. हमने 3 ways पढ़े ना, recycling, avoid wastage and substitute. So these are the 3 ways by which we can conserve minerals. Okay, so this was mineral resources. और next है हमारा topic power और energy resource. ठीक है, स्पेशली जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या हमारे व्हीकल्स रन होते हैं. कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर एनर्जी, है ना, जितना ज्यादा आप काम करोगे दैट इज पावर एनर्जी. देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ पावर एनर्जी. फायर, सन एंड अ नेचुरल हॉट स्प्रिंग. हॉट स्प्रिंग मीन्स जो गर्म पानी का झरना होता है. गिव डायरेक्ट हीटिंग एंड आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. क्या क्या है? फायर, सन एंड नेचुरल हॉट स्प्रिंग. ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. कैन यू टेल मी व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स बच्चों? हाँ, फॉसिल फ्यूल्स मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम. तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी इज कॉल्ड स्टोर्ड एनर्जी, जो हम जब चाहें यूज में ले सकते हैं. एनर्जी इज एन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न लाइफ. कैन यू लिव विदाउट एनर्जी? थोड़ी सी देर भी अगर लाइट चली जाती है, पावर कट होता है, हम कितना परेशान होते हैं. हमारे सारे गैजेट्स बंद हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं. तो इट हैज बिकम द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न लाइफ. इट मे बी नेचुरल और एनिमल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, वो कैसी भी एनर्जी हो सकती है. देयर आर 5 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब देखो कौन कौन से हैं वो मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, फॉलिंग वाटर जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एंड न्यूक्लियर पावर. क्या क्या है? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, फॉलिंग वाटर विच प्रोड्यूसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर. इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. द फर्स्ट 3 अकाउंट, फर्स्ट 3 कौन से हैं? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ 85% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल. हमें जितनी भी कमर्शियल एनर्जी है, हाँ, जो यूज में हम ले रहे हैं वर्ल्ड ओवर, 85% किससे बन रही है बच्चों? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस से. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विच इज बीइंग मेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर and commercial hydroelectric power and nuclear power account for the balance 13%. Coal, oil and natural gas are of organic origin. हाँ, किससे बनते हैं? Decomposition of animal dead bodies जब अर्थ में दबी रहती हैं बहुत सालों तक, उससे बनते हैं कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो वो ऑर्गेनिक है मिनरल्स. And they are also called fossil fuels because they are made from dead remains of vegetable or vegetation, plants and animals. उनसे बनते हैं. They are also non-renewable sources of power. एक बार हम अर्थ में से निकाल लें तो उसके बाद ये दोबारा नहीं आएंगे. Sources of energy are categorized as conventional and non-conventional. कन्वेंशनल मीन्स जो बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है, और नॉन कन्वेंशनल जिसे अभी कुछ समय से हमने यूज करना शुरू किया है. कन्वेंशनल सोर्सेज आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ थर्मल एंड हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी. Non-conventional sources are solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal,
जो अर्थ में से आती है डीप इनसाइड द अर्थ, एटॉमिक एनर्जी एंड बायोगैस. तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज हैव बीन इन यूज फॉर क्वाइट सम टाइम. जो लंबे समय से हम यूज कर रहे हैं एनर्जी सोर्सेज, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेज, while non-conventional sources are new. जो हमने पिछले कुछ 50-60 ईयर्स से यूज करना शुरू किया है, दे आर नॉन कन्वेंशनल. और जो कन्वेंशनल है वो हम काफी सालों से hundreds of years से यूज कर रहे हैं. In developing countries, people still use firewood, charcoal, animal residue like cow dung and crop residue such as stalks of harvested plants. वो जो grains निकालने के बाद बच जाता है उसे अभी भी एज फ्यूल जलाने के काम में ले रहे हैं. दिस एनर्जी फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल इज रिन्यूएबल, लेकिन कोल, पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल. देन इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज की दुनिया में कुछ नहीं हो सकता. यूज्ड फॉर बोथ लाइटनिंग एंड पावर, रनिंग ऑफ मशीन्स. व्हाट इज पावर हियर? रनिंग ऑफ मशीन्स. Three chief means of production of electricity are, कौन से 3 तरह की है? थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर. सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस हो रही है? वाटर से. दिस इज द मोस्ट वाइडली डेवलप्ड एंड रिन्यूएबल सोर्स. सर्टेन नेचुरल कंडीशंस आर फेवरेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ वाटर पावर. ये मोस्ट अभी फेवरेबल है बिल्कुल, अगर सही तरीके से इसको यूज में लिया जाए. दे आर हैवी रेनफॉल. अब देखो कौन कौन सी कंडीशंस है. नेचुरल कंडीशंस है वेयर वी कैन प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जहां हैवी रेनफॉल होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, ताकि वाटर आता रहे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहे, सो दैट रिवर्स मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो. हाई माउंटेन्स, so that rivers flow swiftly, तेजी से बहती हैं, पानी गिरता है. Waterfalls, which are very advantageous, and an absence of very cold winters. Cold winters नहीं होने चाहिए, otherwise water will become ice. फिर वो rivers में flow नहीं रहेगा. तो normal temperature जहाँ रहता है, so that rivers do not freeze. It is the cheapest form of power. सबसे सस्ता पड़ता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर के लिए पैसा नहीं लगता है. एंड अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर. रेनफॉल है, वाटर स्टोरेज है, वाटर इज कमिंग डाउन एंड वी कैन प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर. कैसे यूज हो रही है देखो. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? बन रही है बाय फॉलिंग वाटर टू रोटेट. अब वो फॉलिंग वाटर से क्या हो रहा है? रोटेट हो रही हैं टर्बाइंस. उन टर्बाइंस बहुत तेजी से वो रोटेट हो रही हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी. इन इंडिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम द डैम्स built at Mettur, that is Kaveri River, Hirakud on Mahanadi River. You need to learn ये कौन कौन से डैम्स कहाँ हैं. And Bhakra Nangal on Satluj River. You can see above there's a picture given of hydroelectric power station. वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. Tennessee Valley Authority in USA and Damodar Valley Project in West Bengal consist of a number of dams and power stations. बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, more than one dam which are producing hydroelectricity. Second type is of thermal power. This is produced by coal, burning of coal. Electricity is generated by using fossil fuels like coal or oil or radioactive minerals like uranium. These minerals provide heat energy which is converted into electricity. This is called thermal electricity. इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी यही प्रोड्यूस हो रही है, thermal electricity with the help of coal. Thermal power plants are based on non-renewable minerals, that is coal. सबसे ज़्यादा coal से जो प्रोड्यूस हो रही है that is thermal, water से जो प्रोड्यूस हो रही है that is hydroelectricity. And the third is nuclear. Nuclear जो mineral से प्रोड्यूस हो रही है. Nuclear power, it is based on the release of energy
during spontaneous disintegration of radioactive elements. अंडरलाइन करो कौन कौन से, यूरेनियम एंड थोरियम. इन दो ये जो हैं एलिमेंट्स, इनके एटम्स को फोर्सफुली जब आप चेंज करोगे उसका स्ट्रक्चर, देन इट प्रोड्यूसेस हीट, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसे कैप्चर करके न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है. दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन. इंडिया में भी है, देयर आर 6 or 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस where this nuclear energy is being produced. Countries of Western Europe and USA account for 70% of nuclear power stations. Other leading countries are Russia, Ukraine and Japan. So these are the places. India mein we have 7 nuclear power plants, and in other parts of the world they are producing 70% of their energy by in Western Europe and USA. Or Russia, Ukraine and Japan are also producing nuclear energy. So this was the various types of energy and electricity. In our next class, we'll start with the distribution of fossil fuels. Till then, keep learning.